Question number 11. Read it and try to solve it. We have only 5 minutes to do both the questions. Have you read part A, everyone? Part A पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या समझे उसमें से? Volume increase हो रहा है. I have a mixture of CO and CO2, 1 liter. Shall I say if I have gas, I can take, बता रहा हूँ. Suppose if I have a mixture of gases, I know that PV is equal to nRT, so I can treat volume as number of moles, right? Yes, sir. Very good. So understand that, let's say I have a 1 liter mixture of CO and CO2. So shall I say that out of that mixture, let's say X mixture is belonging to CO2 and Y liter is belonging to CO. So shall I say that X plus Y is given to me as 1 liter? Any doubt in that? No, sir. इसका volume plus इसका volume is equal to 1 liter. Now this mixture is passed through red hot tube containing hot charcoal, right? ए charcoal क्या होता है? Carbon. कार्बन होता है. अच्छा सुनो, होता क्या है कार्बन के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब कार्बन सॉलिड के ऊपर पास करती है, so it produces 2 moles of carbon monoxide gas. So that means carbon dioxide is converting into what gas? Carbon monoxide. चलो ठीक है. What about the number of moles of gases? It increases or decreases? Increases. Will I take volume of solid as volume of gas? Will I consider solid volume in the calculation? Negligible, sir. Yes. We will not consider that. Chalo, great. Now solve that question. I guess this was the hindrance in the mind of all the people. If you come to know this reaction, you can do it. Yeah, guys, tell me what happened. How many liters of CO2 I have? Guys, how many X. liters? X, X. right? Uh, Now, X liter in the reaction will get converted into how many liters? 2x liters. 2x liters. Now, understand that final volume of the solution becomes how much? 1.6. 1.6. So, shall I say that initial volume of CO, what was the initial volume of CO? Y. Initial volume of CO Why? plus final volume of CO, because everything is carbon monoxide right now. कितने के इक्वल होगा ये? Is equal to Vx 1.6. 1.6. What is the initial volume of CO? 1. Yeah, correct. Initial volume is Y. Now, final volume of CO.
What is final volume of CO produced? 2x. 2x. Now it is equal to how much? 1.6. 1.6. Now just tell me x plus y is equal to 1. So shall I say that x plus y is equal to 1? So I'll get x plus 1 is equal to 1.6. So what's the value of x I got? 0.6. Very good. That means in 1 liter, I have x as 0.6 and y as 0.4. done. Over. Yes, sir. Suppose they would have asked you mole fraction of CO2. Then what should be the answer? That is number of moles of CO2 divided by total number of moles. Number 0.6 by 1. number of moles can be taken as volume only, no? 0.6. Yes, sir. So 0.6 only, correct? Yes, sir. Very good. If suppose I would have asked you weight percent of CO2. Now how will you do it? Shall I treat volume as number of moles? Into Yes. So what is the molecular mass mass. of CO2 you will get? 0.6 into 44? Guys, Yes, sir. 26.4. 26.4. divide by 0.4 into what is the mass of CO? I'm not getting feel. Wait. Mole fraction you understood? Yes, sir. Now Yes, sir. I want weight by weight percent of CO2 in the mixture. So shall I say it will be weight of CO2 divided by weight of CO2 plus weight of CO into 100 is equal to how much? Is equal to how much? 8%. I want this percent, right? Weight by weight percent. Now tell me how to calculate weight of CO. Number of moles into molecular weight. चलो ठीक है. Number of moles of CO2 into molecular weight divide by Number of moles of CO2 into its molecular weight plus number of moles of CO into molecular weight. what is the molecular weight of CO? 11.2. Hey, come on. 20. 28. 28. Correct. Yes. So that will be equal to weight by weight percentage. Am I right? Now, what is number of moles formula? Array PV is equal to nRT, right? So number of moles will become equal to PV by RT, if I'm not wrong. Pressure R and temperature is constant. So shall I say that number of moles is directly proportional to volume? Yes, sir. So if I write down like this, so P by RT will get cancelled down as well as in numerator and denominator. P by RT will get cancelled in numerator as well as denominator. Yes or no? Yes, sir. I'll just do it here. Now understand that I'll simply say that pressure into volume of CO2 by RT into 44 divided by pressure into volume of CO2 by RT into 44 plus pressure into volume of CO divided by RT into 28. Any doubt in that? So pressure RT, pressure RT, pressure RT got. So that's Yes. what I told you. Take number of moles as volume because ratio is there. No, every other thing will get cancelled. Correct. So I have treated volume as number of moles. So what should I get here? 0.6 into 44 divided by 0.6 into 44 plus 0.4 into 28. Yes, sir. Yes, sir. That is weight by weight percentage. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, great. Now, read this. This is very simple. We have tried these kind of question many times. Shall I rub this part or you want to write this?
Guys, shall I rub this part? You want to write this? 1 minute, sir. Okay. Correct. Sir, 24. You got tell me the answer. 24. 24 is correct. So बहुत ही था ये वाला तो. हाँ वो तो इजी रहेगा यार. Manoj, just check your answer again. ये इजी है, बहुत इजी है. एग्जैक्टली. वैल्यूज भी सीधे सीधे दे दिए सर. हाँ सब कुछ तो दे ही दिया उसको, बचा है नहीं. भाई. हाँ मैग्नीशियम या मनोज या आदित्य. करेक्ट. या शाकी दी. ओम ठीक है, आदित्य ठीक है. हाँ बेटा है. बट एनीवे सिंपल है नहीं है. स्नेहा ठीक है आंसर. अच्छा, टेल मी एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग ऑप्शन लाइक क्वेश्चन नंबर बी. किसी को डाउट है बी के अंदर तो सॉल्व करते हैं. चल okay. See, they have given that 3 atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen. So I'll be getting M3N2. Now he's saying that 72% is metal. So shall I say that 72 gram is metal and 28 gram is nitrogen? So this is the weight ratio they have given to me. The very same weight ratio will be there in 1 mole of this molecule, Yes. right? Yes, So sir. how many atoms are there in 1 mole? 3 into atomic mass of metal M divide by 2 into atomic mass of nitrogen, that is 14. So this is the mass ratio which is equal to 72 by 28. Correct? Yes, sir. M आ जाएगा कितना? 72 by 3, 3. that is 24, right? Right? Yes, sir. दूसरा तरीका क्या था? 3 मेटल प्लस 2 नाइट्रोजन गिव्स M3N2. करेक्ट. तो 2 नाइट्रोजन का मास दे रखा है 28 ग्राम, इसका दे रखा है 72 ग्राम, राइट? Yes, sir. तो 3 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिवाइड बाय, वेरी गुड. अगर 3 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेते हैं. तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे? 28 by 14, दैट इज कितना मोल? 2 मोल. तो 2 मोल नाइट्रोजन के कितने मोल के साथ रिएक्ट करें? 3 मोल के साथ. तो मतलब ये 2 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब 3 मोल का मास 72 ग्राम है. तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 72 by 3, दैट इज 24 एटॉमिक मास. तो मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इसको, राइट? Yes, sir. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड. आगे चलें. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ मुझको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके दो. Yeah, this is question number 12. रुको,
Let me adjust. Question number 12. अरे छोड़ो वुड्स रिएक्शन, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो वुड्स रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ो उसको। इज सेइंग दैट ब्यूटेन बना रहा है फ्रॉम इथेन, ठीक है। पहले उसने इथेन का मोनोब्रोमिनेशन किया, उसके बाद वुड्स रिएक्शन किया। कह रहा 2 रिएक्शन कर रहा हूँ। तो इथेन का उसने एक रिएक्शन किया, लेट्स से रिएक्शन इज ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद उसने दूसरा रिएक्शन किया, उसके बाद मेरे पास ब्यूटेन आया। क्वेश्चन इज कंजर्व क्या हो रहा है? कार्बन। कार्बन। कार्बन कंजर्व हो रहा है, राइट। अब मुझे बताओ इसका यील्ड कितना है पहले रिएक्शन का? 90%। 90% यील्ड है। इसका कितना परसेंट यील्ड है? 85%. 85। मुझे क्या जरूरत है किसी और चीज की, या खुद कर सकते हो इसको? कर सकते। करो ना फिर। कह रहा 55 ग्राम ब्यूटेन बनाना है मेरे को। ओके आया गाइस, आंसर आया? ओके वन सेकेंड।
वॉल्यूम ऑफ इथेन निकालना एनटीवी पे, राइट? हिमानीश नहीं यार, थोड़ा सा चेक करो। अभिजीत शायद आंसर सही है। मनोज नहीं। मनोज चेक करो आंसर। हिमानीश चेक कर आंसर। डीजे नहीं, चेक करो। या शामिका अप्रोक्सीमेटली। नहीं मानीश, दोबारा देखो। चेक गया। तुमने कैसे किया इसको सॉल्व? मोल कॉन्सेप्ट लगाया कि पीओवेसी लगाया? मोल कॉन्सेप्ट सर। मोल कॉन्सेप्ट लगाया। चलो पहले मोल कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, ठीक है? चलो पहले मोल कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखा। यस या दीप। यहाँ पे 2 लिखा बैलेंस करने के लिए। अरे यहाँ 2 लिखा बैलेंस करने के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। लेट्स से एन मोल्स लिए मैंने। यहाँ पे कितने लिए? 2 मोल। लेट्स से C4 बना रहा है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड बना रहा है। 2 मोल कितने मोल देंगे? अगर 100% रिएक्शन होता तो 2 मोल कितने देते? तो एक मिनट रुक जा। ब्रोमो इथेन बना रहा है ना, बना इथेन ही रहा है, तो 2 मोल C2H5Br के बनेंगे एक्चुअली देखा जाए तो 2 मोल देते हैं, तो एन मोल कितने देंगे? एन मोल। तो परसेंटेज यील्ड कितनी है? 90%। तो कितना बनेगा? इनटू 0.9 वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, 2 मोल 1 मोल बनाता है, तो कितने बनने चाहिए यहाँ पे? 1/2 हाँ एग्जैक्टली, इनटू 2 और डिवाइड बाय 2। बट यील्ड Yes, कितना? sir. 85%. क्या करूं? into 55 इनटू 0.85, करेक्ट? So shall I say that n by 2 into 0.9 into 0.85 into its molecular mass? What is the molecular mass of C4H10? 58. Should be equal to 55 grams. Yes or no? Yes. अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 55 into 2 डिवाइड बाय 58 into 0.85 into 0.9। कोई दिक्कत? No, sir. इतने No, sir. नंबर ऑफ मोल्स किसके आए? इथेन के आए। Yes. एनटीपी पे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा इथेन? इंटू 22.4। 22.4. वेरी गुड। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? नहीं अभिजीत, इसको सॉल्व तो करो, कितना आएगा? 55/2 110। मैं ही कर देता हूँ, रुको। एक सौ दस डिवाइड बाय 58 डिवाइड बाय 0.85 डिवाइड बाय 2.47 9 इंटू 22.4 55.53। तो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 55.53 लीटर्स।
गेटिंग इट? अभिजीत तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, इंटू 22.4 करोगे कि नहीं करोगे वॉल्यूम निकालने के लिए? बेटा 22.4 करोगे कि नहीं करोगे वॉल्यूम निकालने के लिए? या हाँ ठीक है, मोल्स ठीक है, मोल्स आर कूल। ओके डन। इसको पीओएसी से करना है मेरे को, कैसे करूं? कार्बन को कंजर्व करना। अरे सुनो ना, बहुत सिंपल है, पीओएसी से करना है तो देखो, अगर रिएक्शन 100% इफेक्टिव होती तो मुझे पता है C2H6 है, इससे मुझे 2 स्टेप्स में फाइनली C4H10 बनाना है। कार्बन कंजर्व कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं 55/58। अगर ये 100% यील्ड होता तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स n मान लेता हूँ, गेटिंग इट? और इसके नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए। नाउ अंडरस्टैंड दैट, इससे n1 ले लो, इसको n2 ले लो। अगर ये रिएक्शन 100% यील्ड पे होती तो आई सिंपली वुड हैव रिटन दैट नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी। एग्रीड? Yes, sir. सो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके डायरेक्टली कितने आते हैं? 55.58 इंटू 2, यही आता है ना? Yes, sir. बट इशू क्या है, इसका यील्ड कितना है? 90%। तो 90% यील्ड है, इसका कितना 85% यील्ड है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि सॉरी, सर देखो क्या कर सकते हैं, मेरे पास फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, करेक्ट? अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. नाउ अंडरस्टैंड, Yes, sir. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। इसको n1 ले लेते हैं, इसको n2 ले लेते हैं। जब ये बेटा उल्टा जाएंगे, बट देखो तो करेंगे कैसे। n1 है, ये n2 है, ठीक है? तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जब 100% यील्ड होता तो आई वुड हैव गॉट n1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको n3 मान लो, 4 इंटू n3। so n1 should be equal to 2 times n3। बट चक्कर क्या है, यील्ड है 90%, तो जो n3 का यील्ड होगा, एक्चुअल n3 का यील्ड होगा, वो 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस रिएक्शन में। Yes, sir. और एक्चुअल यील्ड कितना 85%, तो जो n3 का दोबारा से मल्टीप्लीकेशन होगा वो 0.85 से होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Now understand, this is the 100% effective thing. So shall I say that? Fine. So I would have got n3 into 0.9 into 0.85 is actually equal to n2। अरे अगर ये 100% था तो ये होता, करेक्ट? बट आना चाहिए था n3, आया कितना? n2, करेक्ट? वो n2 कितना होगा? n3 को पहले 90% यील्ड किया, फिर 0.85% यील्ड किया, कोई दिक्कत? No, sir. चलो ठीक है, तो shall I write down that n3 will become equal to n2 by 0.9 into 0.85, correct? Correct. Yes, sir. Put n3 over here, replace it. So I'll get n1 is equal to 2 into n2 divided by 0.9 into 0.85। n2 की जगह क्या आ जाएगा? 55/58। n2 I'll simply write it 55/58।
आई गेस पहले भी यही आया था, अभी भी यही आया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सर Yes, आपने sir. इसको इक्वेट कैसे किया सर? Yes, sir. अरे यार देखो, अब मैं दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह समझाते हैं। सर वो N3 था, वो जब रिएक्शन हाँ 100% इफेक्टिव था तभी ना नंबर ऑफ मोल्स N3। अरे देखो ना यार, इतना तो समझ में आता ना कि अगर 100% इफेक्टिव है तो क्या होगा। इथेन है, इसने एक बनाया ए, दूसरा बनाया ब्यूटेन, करेक्ट। यस सर। अगर 100% इफेक्टिव होता तो यहाँ पे N1 लेते, यहाँ पे क्या आ जाता फाइनली, N1/2 गेटिंग इट, सॉरी N1 बाय N1/2 N1/2। बट चक्कर क्या है, आया कितना, यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 0.85 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आना चाहिए था N1/2। आया कितना, आया कितना, N1/2 इंटू 0.9 इंटू 0.85। एक बार 90% यहाँ हो गया, 0.85% यहाँ हो गया, तो जो एक्चुअल यील्ड आई मेरे पास वो N1/2 नहीं आई, बट N1/2 इंटू 0.9 इंटू 0.85 आई। हाँ हाँ, तो कितना आया मेरे पास, 55/58, यही आया ना। हाँ यस तो N1 क्या हो जाएगा, 55/58 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.9 इंटू 0.85। कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं सर। हाँ, तो इंटू 22.4 करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और वही आएगा जो हमने पहले निकाला था। अंडरस्टूड? ऐसे समझ में आई बात? हाँ आना सर। चाहिए था N1/2, बट N1/2 का 90% यहाँ पे हुआ, 85% यहाँ पे हुआ, तो 0.85 0.89 आ जाएगा, और इतना एक्चुअल अमाउंट आएगा। डन? डन। वेरी गुड। आगे चलें गाइस, आगे चलें। हाँ सर। या ग्रेट, एक मिनट, या तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक काम करो, नोटबुक और पेन निकालो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। नोटबुक पेन है तुम्हारा, फेयर नोटबुक है कि रफ नोटबुक है? फेयर सर। फेयर ना। उस नोटबुक के पीछे लास्ट में, राइट, हाँ, उस नोटबुक के लास्ट में करीबन 6 या 7 पेजेस छोड़ दो। उस 6-7 पेजेस के बाद ये टॉपिक लिखो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ओलंपियाड एंड केवीपीवाई, जिसको हम टाइम टू टाइम लिखते रहेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर केवीपीवाई एंड ओलंपियाड, ठीक है? हाँ, फॉर एवरीवन Manoj, this is for everyone because KPY is for NEET as well as for engineering aspirant. It's a research oriented field.
It's very important thing. Very important. Shall we start? Yes, sir. Okay. So write down first point. All alkali metal carbonates are thermally stable. All alkali metal carbonates are thermally stable except for lithium carbonate. Except for lithium carbonate. And other elements carbonate on heating decomposes. Other elements carbonate on heating decomposes to give oxide and carbon dioxide. समझो इस चीज को. अगर मैं Na2CO3 सॉलिड सोडियम अल्कली मेटल है, अगर मैं उसको हीट करता हूँ, इफ आई एम हीटिंग इट, नो रिएक्शन, इट इज थर्मली स्टेबल, इट वोंट डिकम्पोज. अगर मैं लिथियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ, यही एक अल्कली मेटल है जिसको हीट करने पे इट डिकम्पोजेस टू गिव Li2O सॉलिड, लिथियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बाकी सारे एलिमेंट्स के लाइक कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट उठा लो, लेड कार्बोनेट उठा लो, उनके अगर सॉलिड को हीट करोगे ना, इफ यू जस्ट हीट देम, everything, now if just heat them, everything will get converted into their oxide, calcium oxide, magnesium oxide, lead oxide. lead oxide को litharge भी कहते हैं. The new other name of lead oxide is litharge, plus it'll give carbon dioxide gas. All of them decomposes. अब एक और चीज है, पता है क्या, कि अगर मैं I said carbonates of alkali metals are thermally stable except lithium carbonate, while all other element carbonates on heating gives their corresponding oxide and carbon dioxide. अच्छा एक बात सुनो सारे, मेरे पास ना Ag2O है, मेरे पास Au2O है और Au2O3 है, मेरे पास HgO है, ठीक है. एंड इनकी पता है क्या टेंडेंसी क्या है, अगर इनके ऑक्साइड्स को मैं बहुत स्ट्रांगली हीट करूँ ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करूँ, तो they lose their oxygen and they become metal like this. Similarly, gold, it will become Au plus half oxygen. I'll get Au plus oxygen. I'll get Hg plus oxygen. So these elements, their oxides have tendency to give oxygen gas. बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ यही एलिमेंट है जिनके साथ ऐसा होता है, ठीक है. And to a less extent, platinum also do that, but it requires very high temperature for doing this. So these are the only elements
which actually lose oxygen on heating. तो तुमको कार्बोनेट्स के बारे में पता लग गया और तुमको ऑक्साइड्स के बारे में पता लग गया। सर एक बार वापस बताओ ना। किसका बताऊं? सर आपने लिखा कि लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी सब ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। नहीं, मैंने कहा लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेबल होते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं। लिथियम कार्बोनेट और बाकी सारे मेटल के एलिमेंट के कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और सिर्फ अल्कली मेटल्स रिएक्शन Alkali नहीं देते। metals नहीं देते, कुछ नहीं देते, उनका रिएक्शन नहीं होता। लिथियम को छोड़ के बाकी सारे अल्कली मेटल स्टेबल होते हैं। कार्बोनेट्स, ये लिखा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। 2 मिनट से लिख लिया? और सर ये ऑक्साइड का अलग पॉइंट है। हाँ बेटा, ऑक्साइड का अलग पॉइंट है। सारे यही एलिमेंट के ऑक्साइड्स को अगर हीट करोगे तो अपना ऑक्सीजन लूज करके डायरेक्टली एलिमेंट बनाते हैं, मेटल आता है। तो ऑक्सीजन का पॉइंट लिखाओ ना, क्या था? अरे बेटा, सिर्फ यही ऑक्साइड्स है ना, दे लूज योर ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल, सिर्फ यही ऑक्साइड। सिर्फ ये 5? हाँ, ये 5। इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। अब इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी मतलब शिद्दत के साथ जवाब देते थे। अब दिस 1 minute. ओके। यार जोशना, मैं ऑडिबल ना हूँ? अभी सही है आवाज? या ठीक है, ओके। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है सर। ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब हाँ आ रही है ठीक ना हो ढंग गई। से? हाँ, टेंशन मत लो, हो जाएगी ठीक, ऐसा ही होता है कई बार। चल अब दिस नाउ, से यस। हटाऊं इसको? यस सर। चलो अभी सुनो और। सर वो तीसरा मेटल कौन सा लिखा था आपने, दिखा नहीं। प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड और मर्क्यूरी। 5 थे ना? बेटा एक था ना, वो 2 गोल्ड के ऑक्साइड थे, Au2O था और Au2O3 था। अच्छा अब सुनो क्वेश्चन। एक और थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट है। डू यू नो व्हाट? alkali metal nitrates, alkali metal nitrates on heating at 500 degrees Celsius nearly gives nitrites and oxygen, except lithium nitrate. Getting it? Except lithium nitrate. While other elements nitrates forms oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas on heating. मतलब अगर मैं अल्कली मेटल, कौन सा अल्कली मेटल लूं? चलो अल्कली मेटल हो गया तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम,
रुबीडियम, सीजियम एंड लिथियम को छोड़ दो. लिथियम भी एल्कली मेटल है बट वो एक्सेप्शन है. लिथियम का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर मैं सोडियम नाइट्रेट को नियरली 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूं तो मेरे पास सोडियम नाइट्राइट आता है NaNO2 और ऑक्सीजन गैस निकलेगा. अगर मैं अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स को और हायर टेम्परेचर पे हीट करूं, मनोज ठीक हो जाएगी बेटा. अगर अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स को और हायर टेम्परेचर पे हीट करूं, लेट्स से 800 डिग्री सेल्सियस, then I will get Na2O oxide. I'll be getting N2 nitrogen gas and oxygen gas. Balance it. N2 I'll get and 6 ऑक्सीजन में से एक इधर गया 5/2 O2. This is the reaction of alkali metal nitrates on heating. Lithium nitrate Li2NO3 LiNO3 lithium nitrate on heating, let's say 500 degrees Celsius, it decomposes to give directly oxide, NO2 gas and oxygen gas. Balance it to half O2. While कोई भी दूसरा एलिमेंट का नाइट्रेट ले लो, एग्जाम्पल बताओ कोई भी नाइट्रेट का. गाइस कोई भी नाइट्रेट का एग्जाम्पल बताओ, जल्दी बताओ. Manganese nitrate. हाँ Lead nitrate. लेड नाइट्रेट पढ़ लिया ऊपर से. इसको हीट करोगे ना तो कोई भी नाइट्रेट ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड आएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस आता है. और अगर सपोज करो मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया, लेड ही क्यों, मैग्नीशियम भी ले लिया, कोई भी दूसरा नाइट्रेट ले लो, हीट करने पे ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस आता है. That's the reaction on heating. It's very important. अच्छा मेरे मिट्टी के शेरों, ये बताओ इसको हीट करूंगा तो क्या आएगा? Ag. क्या? Silver plus oxygen plus carbon dioxide. एक बात बताओ, पहले तो ऑक्साइड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. पर वो पहले break ऑक्साइड आएगा, फिर अगर ऑक्साइड को और स्ट्रांगली हीट किया तो फिर मेटल silver आएगा. और oxygen. ऑक्साइड आएगा. मेटल आएगा और ऑक्सीजन गैस जाएगा, बिकॉज सिल्वर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन लूज करता है. करेक्ट? Yes sir. यस सर. वेरी गुड. Yes, समझ आया sir. इतना? Yes sir. हटाऊं इसको? 1 मिनट सर, रिएक्शन. हाँ लिखो 2 मिनट. इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है.
लिख लिया? Guys, have you written that? Yes, sir. Okay, shall we move ahead? Yes, sir. चलो, great. सॉल्व करो इसको. हाँ बेटा, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट है. लेड का चार्ज +2 होता है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ढंग से लिखना. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो. ओके, 10013 वेबकैम ऑफ करो यार. सर आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा था सर. बेटा जो बोलूंगा तो आवाज आएगा ना. मैं तो पूछ तो रहा हूँ इसके कि लिए मैं सॉल्व देख हुआ. रहा था, आपको वॉइस ही नहीं आ रहा है सर. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अभी आ रहा है. हाँ सर, अभी आ रहा I'm है. just waiting for you guys to give me the answer, बेटा. सर मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया, इसके लिए मैं देख रहा था. नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हो. अगर मिक्सचर में सिर्फ नाइट्रेट तो उनका ही होगा ना, अलावा भी. अरे सी द थिंग इज, जस्ट चेक कि कितना वेट लॉस हुआ है. वेट लॉस इज बिकॉज ऑफ गैसेस, राइट? You want me to solve that or you're solving it? There are two options. Shall I start it? Wait. Okay, 1.68, Abhijit.
ओके गाइस, डन। सॉल्व किया। सुनो अभी, आई डू इट। ओके बेटा, सुनो करना कैसे। Pb NO3 whole twice. If I'm heating it, I'll be getting PbO plus NO2 plus half O2. This is gas. This is gas, right? Okay. And NaNO3 on heating will give me Na2O plus, sorry, my fault, NaNO2 plus half oxygen. Guys, एक बात बताओ, what is the mass of lead nitrate fully? Lead is 208. The mass, the atomic weight of lead is 208, 208. तो मुझे पता टोटल मास कितना है lead nitrate का। इसको हम x ग्राम मान लेते हैं, इसको y ग्राम मान लेते हैं। तो मुझे बताओ कितना मास है lead nitrate का टोटल। 5 minus x. अरे बेटा नहीं यार, ये बताओ, ये 1 मोल का कितना मास है? 331. Shall I say that 331 ग्राम तुम्हारा 96 ग्राम गैस यहाँ दे रहा है और 16 ग्राम गैस यहाँ दे रहा है, कह सकता हूँ मैं। मतलब 331 ग्राम में से वेट लॉस कितना हो रहा है? 16 प्लस 96 कितना हुआ? 112. What? This is this is 92. Sorry, one second. This is 92. हो जाएगा 108. तो 331 ग्राम 108 ग्राम लूज कर रहा है, तो x ग्राम कितना ग्राम लूज करेगा? अगर 331 ग्राम 108 ग्राम लूज कर रहा है तो x ग्राम कितना ग्राम लूज करेगा? 108 बाय 331 इंटू एक्स, राइट? अब एक बार बताओ, कितना मास है NaNO3 का? 23 प्लस 14 प्लस 40 कितना आया? अरे कितना है? 58, 62, 62, 85. 105. कितना आया? 85 ग्राम। 85 ग्राम कितना ग्राम लूज कर रहा है? 16 ग्राम। तो y ग्राम कितना लूज करेगा? y ग्राम कितना लूज करेगा? 16 बाई 85 इंटू y। इतना समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं कह सकता हूँ 108 बाई 331 x प्लस 16 बाई 85 y इज इक्वल टू द वेट लॉस एंड दैट इज 28% ऑफ 5 ग्राम। कितना आया? 1.4. 1.4। डन। ये एक इक्वेशन आ गई, करेक्ट। और एक और इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हो जाएगा? रश्मि डाउट है? रश्मि ओके, ये समझ में आया क्या गाइस? हाँ सर। चलो अब ये समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा ये। दो इक्वेशन, दो आप वेरिएबल्स। ये फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ बेटा सुनो ना, 1 मोल लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये गैस देता है। तो मैंने 1 मोल का ले लिया 331 ग्राम, तो 331 ग्राम लूजेस
2 into 46, that is 92 grams of NO2 and loses half into 32, 16 ग्राम. तो 381 ग्राम में से 108 ग्राम गैस लूज हो रहा है. तो 331 ग्राम अगर 108 ग्राम गैस लूज कर रहा है तो x ग्राम कितना करेगा? 108 by 331 into x. बेटा हाँ कि ना? हाँ सर. वेरी गुड. अगर 85 ग्राम तुम्हारा 16 ग्राम गैस देता है तो y ग्राम कितने ग्राम गैस देगा? 16 by 85 into y. हाँ. हाँ, तो टोटल कितना गैस लूज हुआ? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 28% ऑफ 5 ग्राम्स. 28% लूज हुआ ना 5 ग्राम का. हाँ. हाँ, तो 28% 5 ग्राम का कितना होता? 1.4 ग्राम. और x प्लस वाई कितना ग्राम था? 5 ग्राम. x is the weight of lead nitrate and y is the weight of NaNO3. कोई दिक्कत? नहीं. समझ में आया? हाँ. चलो आगे चलें. Yes, sir. ओके. Oh God. ओके, ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है. करो भाई इसको. रुको, लेट मी मैनेज दैट. ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं इसमें concentration terms में. So the practice for concentration terms now, just start solving. इधर जल्दी करो इसको. What is Glauber salt? Na2SO4 dot 10H2. Exactly. Na2SO4 dot 10H2O is Glauber salt. वो चाहता है इतना ग्राम ग्लोबल सॉल्ट का उसने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है. डेंसिटी दे रखा सॉल्यूशन का. मोलारिटी चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए. ये क्वेश्चन कर लोगे कि मैं करूं? मतलब will it create a problem at home or should I do it? No, sir, I will do it. हाँ, आप करेंगे. करो सर. ओके, एक बात बताओ. What is the weight of global salt at dissolved? Weight of global salt is 8.0575 into 10 is to power minus 2 into 10 is to power 3 grams. तो मेरे पास आया 80.75 ग्राम. करेक्ट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 80.75 डिवाइड बाय व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4.10H2. कितना आ गया? सोडियम 23, 46, 46 प्लस सल्फेट 96, 96 प्लस 180. टोटल कितना है ये? 102, 142, 142 plus 180, that is 322. Correct? Yes, sir. So 322 number of moles आ गए Na2SO4 के. Now understand that molality हो गया तुम्हारा directly number of moles of solute by volume of solution in liter. Number of moles of solute is 80.75 divided by 322 and volume of solution in liter is 1. 1 decimeter cube of solution is 1 liter. 1 decimeter cube is 1 सर liter. 80.75 ग्राम कैसे आया? बेटा दे रखा है ना. ओह 1 सेकेंड. 80.57 हो जाएगा. 57. हाँ.
ठीक है यार 5-7 कर, ठीक है 80.57 कर दो। चलो 1 decimeter cube is 1 liter, 1 centimeter cube is 1 ml, and 1 meter cube is 10 is to power 3 liter, याद रखना, राइट। डेकामीटर। अब चाहिए क्या इसको, ये हो गया मोलारिटी। नाउ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहेगा कितना, 1077.2 kg per meter cube will be equal to 1.077 ग्राम पर ml। इसको अगर मैं ऐसा इस ग्राम पर ml में कन्वर्ट करूँ तो आई गेट दिस। अब एक बार बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मेरे को 1000 ml, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B will be equal to 1077 ग्राम्स। कोई दिक्कत इसके अंदर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो वेट आ जाएगा, कोई दिक्कत गाइस, कोई दिक्कत नो ना। उसके बाद एक बार बताओ, डब्ल्यू भी मेरे पास आ रखा है कितना, इतना, तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए विल बिकम इक्वल टू 1077 minus 80.57, make it like 80.5 only। तो मेरे पास डब्ल्यू ए आगे कितना आएगा, डब्ल्यू ए अप्रॉक्स 0.5, 6, 17 माइनस 8 कितना हुआ, डन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज कितना हो जाएगा, 0.996 kg। मोलारिटी कितना निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 80.57 बाय 322 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 0.996। कोई दिक्कत गाइस, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 should be equal to number of moles of Na2SO4 that is 80.57 divided by 322 divided by total number of moles 80.57 divided by 322 plus number of moles of water. What is the weight of water? So 996 divided by 18. कोई दिक्कत? No, sir. Yeah, this is the answer. Guys, you got the answer? भाई समझ में आया करना कैसे है? Yes, sir. आगे चलें? चलो, we'll move ahead now. Clear all drawings. Format. Okay. Question number 15. In a solution 100 ml 0.5 molar acetic acid 1 gram of charcoal is added। तो होता क्या, 1 ग्राम जो चारकोल है ना वो एसिडिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नाउ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड बिकम्स 0.49 मोलर। एक बात बताओ, कितने मिलीमोल एसिडिक एसिड के हैं? इनिशियली 50। मैंने हाँ 50 50। मिलीमोल एसिड 50 मिलीमोल लिए थे। अब 100 ml का 0.949 मोलारिटी हो गया, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने बचे सॉल्यूशन में? इनिशियल मिलीमोल्स वर 100 ml into 0.5 molar, that is 50।
फाइनल कितना बचा? फाइनल था 0.49 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दैट इज 49 मिलीमोल्स। तो 50 मिलीमोल थे, एक्टिवेटेड चारकोल डाला, उसने एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब किया, उसमें से कुछ एसिटिक एसिड बच गया, कितना बचा? कितना 49 बचा? millimoles. 49 millimoles. तो एब्जॉर्ब कितना किया उसने? 1 millimole. 1 हाँ, millimole. तो होता क्या है, चारकोल ने ना अपने सरफेस एरिया पे उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑन द सरफेस। अब सोचो 1 मिलीमोल एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हुआ तो कितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए? 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power minus 3। एक मिलीमोल में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। Yes, sir. तो आया 6.022 into 10 to the power 20 molecules of acetic acid adsorb। वो कह रहा है अगर सरफेस एरिया चारकोल का इतना मीटर क्यूब है तो पर यूनिट सरफेस एरिया में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे? कह रहा है इतने सारे मॉलिक्यूल, सॉरी दो बार पढ़ो। कैलकुलेट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय सिंगल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। यार इतने एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा? 3.01 into 10 to the power 2 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। एक एसिटिक एसिड कितना मॉलिक्यूल और कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा? 3.01 into 10 raised to power 2 divided by 6.022 in 10 raised to power 20. ओके, तो शैल आई से दैट ये गया 1/2, ये आ गया ऊपर 10 raised to power minus 18, so I'll get 0.5 into 10 raised to power minus 18 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो ग्रेट। ओके great, now last question। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। "20% of surface sites have adsorbed nitrogen. On heating, nitrogen gas evolved from the sites and it was collected at" ठीक है, एक कैटलिस्ट है, एक पर्टिकुलर मेटल है, उसके बाद बहुत सारी साइट्स हैं। साइट्स क्या होता है? जहाँ पे गैस एब्जॉर्ब होती है। मेरे पास कुछ साइट्स हैं, उन साइट्स में से ना किसी साइट पे नाइट्रोजन गैस अट्रैक्टेड है। तो टोटल साइट्स में से 20% ऑफ साइट्स अट्रैक्टेड है। मैंने ना इसको हीट किया, जहाँ पे नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब है वो नाइट्रोजन गैस बाहर आ गई। इट वॉज कलेक्टेड एट, वो कह रहा है इसको हमने कलेक्ट किया है 0.001 ATM पर एट टेम्परेचर 298 Kelvin, एंड जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है नाइट्रोजन गैस ने दैट इज 2.46 ml, सेंटीमीटर क्यूब इज ml। डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट्स इज 6.023 into 10 to the power 14 centimeter square per centimeter square। मतलब क्या है? 6.023 into 10 to the power 14 sites are there in 1 centimeter square of this metal। कह रहा है सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर है। तो अगर सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी साइट्स है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी साइट्स होंगी? 6.023 into 10 to the power 17। उसका इस साइट्स का कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है नाइट्रोजन ने? 20%. तो लिख सकता हूँ
occupied by nitrogen, sites occupied by nitrogen, साइड जो ऑक्यूपाई करेगी नाइट्रोजन से, ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 17 का 20%. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. साइट्स नाइट्रोजन गैस ने एब्जॉर्ब कर रखी है. कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सरफेस साइट ऑक्यूपाइड पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. कह रहा है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितनी साइट्स लेती है ये बता दो. मुझे नंबर ऑफ साइट्स पता लग गया जो नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई कर रखी है. एक बात बताओ, इससे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू पीवी बाय आरटी. करेक्ट? करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स? 10 to power minus 3, वॉल्यूम इज 2.46, डिवाइड बाय आर इज 0.0821, टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो ये कितना है अप्रोक्सीमेटली, सॉल्व करके बताओ. तो फॉर्मूला में ml में वॉल्यूम लेते हैं. सुनो सुनो, ये हो गया तुम्हारा 22.4. क्या कह रहे हो? सर फॉर्मूला में ml में वॉल्यूम लेते हैं क्या? फॉर्मूला में सर ml में वॉल्यूम लेते हैं क्या? PV इक्वल टू nRT में. हाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा ना, तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स पीवी बाय आरटी. यस सर. तो पीवी बाय आरटी, प्रेशर हमने एटमॉस्फेयर में लिया, टेम्परेचर केल्विन है, वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको लीटर में लेना पड़ेगा. राइट? यस सर, वही बोल रहा हूँ. हाँ, एंड दैट्स इट. बाकी सब ठीक है. अब मुझे बताओ कितना आएगा. मेरे ख्याल से 298 इंटू 0.0826, ये 24.6 आएगा. जरा चेक करना. जहां तक मुझे लगता है 24.6 आएगा. चेक करो. सर 23.84 आ रहा है. कितना? देखो अप्रोक्सीमेटली ये 10 पे जाएगा. राइट? 24.4 आ रहा है सर. ठीक है ना, चलेगा ना इतना. तो 10 से कटेगा नीचे यस सर. तो आ जाएगा नियरली 10 टू पावर -7. कोई दिक्कत नो सर. No, नहीं sir. ना? 10 टू पावर -7 मोल्स में कितने नाइट्रोजन होंगे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन 6.02223 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर -7. करेक्ट? करेक्ट. यस सर. तो कितना आया? 6.023 इंटू 10 टू पावर कितना? 10⁻⁵. 15 या 16 आया? 16 सॉरी 16. 16 आएगा ना? यस सर. तो इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, इतनी साइट्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी हैं. तो एक नाइट्रोजन ने कितनी साइट ऑक्यूपाई कर रखी होंगी? इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल थे, इतनी साइट्स ऑक्यूपाइड है, तो एक नाइट्रोजन ने कितनी साइट्स ऑक्यूपाई कर रखी होंगी? तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 16 नाइट्रोजन ऑक्यूपाइड 1/5 into 6.023 into 10 to power 17 sites. Understood? Yes, sir. Yes, sir. एक नाइट्रोजन ने कितनी ऑक्यूपाई कर रखी होंगी? डिवाइड करेंगे. 10/5 into 6.023 into 10 to power 16 लिख दो इधर, बिकॉज 10 तुमने पहले निकाल लिया है. 6.023 into 10 to power 16, इससे ये गया कितना आया? पर नाइट्रोजन कितनी एब्जॉर्ब रखी है साइट? 2. तो ये ना जेई का क्वेश्चन था, जेई एडवांस का.
Understood? Yes, sir. Done? Yes, sir. Chalo. I guess we will wind up now. Yes, sir. Chalo. Yes, sir. Take care, beta. And Wednesday को test होगा. Please solve that assignment which I have sent to you. ठीक है? Okay, sir. Okay, beta. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, Chalo, sir. bye, beta. Bye. Bye, sir. Bye, 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 bye.